Hello everyone, welcome to my online prep. Here's another class of a revision series for the CAIIB exam 2023. This revision series is for the paper 4 of this exam, that is Banking Regulations and Business Laws. Today we'll be covering the chapter 6 from module A, Non-Banking Financial Companies. We'll be seeing the important MCQs that are crucial from exam point of view, as well as we'll revise the topics that are associated with those topics. So यहाँ पे हम MCQs discuss कर रहे हैं. These videos are being uploaded on the YouTube channel of My Online Prep on the daily basis, and you should not miss any video because हर एक video हर एक chapter ज़रूरी है आपके revision के लिए. The time now left for examination is very less and you need to complete your revision in this limited time period. These videos are here to assist you. So do like the videos and subscribe to the channel of My Online Prep so that you do not miss any video. Now let us see what all topics are covered under this chapter. So this chapter is regarding the non-banking financial companies, the regulators, role of NBFCs in promoting inclusive growth, how registration of NBFCs is done, what is the revised scale-based regulatory structure, the nomenclature and regulatory norms, capital guidelines, prudential guidelines, corporate governance, as well as the fair practices code that is applicable to the NBFC. So NBFC से related सारी जो भी important information है ये इस chapter में cover की गई है. We'll be covering the MCQs that are most important from the exam point of view. इसका revision करना जरूरी क्योंकि एग्जाम्स में इसके पूछे जाने के चांसेस है. अगर आप ये सारे MCQs को thoroughly पढ़ते हैं उसके साथ में टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं तो आप इजीली इस चैप्टर से पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. Now let us move on to the first question of today's session. So the question says, among the listed activities, which one is not typically associated with NBFC? So we have been given 4 activities. हमें बताना है कि इसमें से NBFC की कौन सी activity नहीं है. Given options are leasing and hire purchase, foreign exchange trading, chit fund operations और issuance of debentures. तो NBFCs कौन से वो सारी companies that are listed under the Companies Act of 1956 or the modified 2013. इसमें क्या क्या activities आती हैं? These are regarding the business of loans and advances, acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities जो कि गवर्नमेंट इशू करती है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी, एज वेल एज जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं. इसके अलावा लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस, ये सारी एनबीएफसी की एक्टिविटीज हैं. So leasing and hire purchase, chit fund operations and issuance of debentures. These are the activities that are associated with NBFCs. But question में क्या पूछा गया है? कौन से associated नहीं है? So the right answer is B, that is foreign exchange trading. Foreign exchange trading ये NBFC की activities में नहीं होता है. These are mostly carried out by the authorized banks. So अब इसमें और कौन कौन सी activities हैं? Does not include any institution जिनका principal business या तो agriculture हो सकता है या फिर it is related to any industrial activity for the purchase or sale of any goods directly other than security or the construction, sale and purchase of immovable property. तो ये सारी चीजें हैं जो NBFC के अंदर नहीं आती हैं. So the right answer is B, that is foreign exchange trading. Next question. It says, which specific sections of the Reserve Bank of India Act of 1934 governs the regulation and supervision of the non-banking financial companies? So Reserve Bank of India Act के अंदर कौन से sections हैं जो कि NBFCs के लिए regulation और supervision का governance का काम करता है? Given options are section 25(1)(a) and 45(1)(b), section 10 and 20, section 35(fa) and 51(b, sections 41A and 55FA. तो इसमें से कौन से हैं सेक्शंस जो कि NBFCs का रेगुलेशन और सुपरविजन में रोल प्ले करते हैं? These are sections 25(1)(a) and 45(1)(b. That is the right answer is option A. तो NBFCs के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, that is known as the Department of Non-Banking Supervision under the RBI. Department of Non-Banking Supervision. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द NBFCs अंडर द रेगुलेटरी प्रोविजंस. These are contained under the chapter 3B and C as well as the chapter 5 of the RBI Act of 1934. तो इस तरीके से NBFCs का
रेगुलेशन और सुपरविजन कवर करता है आरबीआई के अंदर। अब जब फोकस है रेगुलेशन और सुपरविजन का, ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द डिपॉजिटर, देन कंज्यूमर और वी कैन से कस्टमर प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये तीन फैक्टर्स है जिसके लिए रेगुलेशन और सुपरविजन होता है। ऑल्सो आरबीआई ने एम्पावर किया, इट इज एम्पावर्ड अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 टू टेक पनिटिव एक्शन। जहां पे भी पनिटिव एक्शन क्या हो सकते हैं? कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन इशू ऑफ प्रोमिसरी नोट्स, ऑर्डर्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, इवन क्रिमिनल केसेस भी फाइल कर सकते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट इन एक्सट्रीम केसेस। तो ये पावर किसके पास है? आरबीआई के पास। So this is how the regulation and supervision of the non-banking financial companies is done. So the right answer is option A. Next, the next question is, what role do NBFCs play in channelizing the financial resources to capital formation? So NBFCs का role क्या होता है capital formation में? Given statements are, they facilitate mergers and acquisitions in the corporate sector. They provide venture capital for the startups and early stage companies. They act as intermediaries between the lenders and borrowers, or they offer specialized insurance products to mitigate the financial risk. So एनबीएफसी यहाँ पे पूछा गया फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैपिटल फॉर्मेशन में किस तरीके से चैनलाइज करते हैं। सो दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन लेंडर्स एंड बोरोवर्स। द राइट आंसर इज बी, दैट इज ओनली 3। मर्जर्स एंड एक्विजिशन में एनबीएफसी का रोल नहीं होता, वेंचर कैपिटल फंड नहीं प्रोवाइड करते हैं, या फिर ये अर्ली स्टेज कंपनीज को फंड्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, स्टार्टअप्स नहीं कर सकते। देन दे डू नॉट ऑफर स्पेशलाइज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी नहीं ऑफर करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वो इंटरमीडियरीज की तरह एक्ट करते हैं। So NBFCs, they are actually in today's time, they're competing with banks in providing the financial services such as infrastructure finance as well as housing finance. ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें वो जो ट्रेडिशनल बैंक्स है उनसे भी compete कर रहे हैं। हिस्टोरिकली NBFCs क्या करते थे? they were offering small ticket पर्सनल लोन्स, मतलब कि फाइनेंसिंग ऑफ 2 और 3 व्हीकल्स, ट्रक फाइनेंसिंग, फार्म इक्विपमेंट एंड सो ऑन। लेकिन आज के टाइम पे एनबीएफसीज दे ऑफन टेक लीड रोल इन प्रोवाइडिंग द इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज टू द एमएसएमईज एंड मोर सुटेबल टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एनबीएफसीज के फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, दीज आर सिंपलर प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स इन सैंक्शन एंड डिस्बर्समेंट ऑफ क्रेडिट। उसके अलावा ये फ्रेंडली होते हैं, ज़्यादा इनको लोकल एरिया के बारे में पता होता है, फ्लेक्सिबल टर्म्स होती है रीपेमेंट के लिए, एंड यूनिक फीचर्स होते हैं जो कि क्लाइंटेल को या जो क्लाइंट बेस है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सो दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन लेंडर्स एंड borrowers. This is the role that NBFCs play in channelizing the financial resources. इसके अलावा NBFCs इंक्लूसिव ग्रोथ में भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। देन उसके अलावा वो क्या करते हैं? वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं एमएसएमईज को। ऑल्सो बहुत सारे रोल्स हैं एनबीएफसीज के जो कि आज के टाइम पे ग्रोथ में काफी हेल्पफुल है। बट हियर द राइट आंसर इज बी, दैट इज ओनली 3। मूविंग ऑन, the next question is, what is the purpose of exempting certain NBFCs from registration with RBI? So RBI Act of 1934 के अकॉर्डिंग हर एक NBFC को रजिस्ट्रेशन करना होता है RBI के साथ, लेकिन कुछ NBFCs को इससे exemption मिला है। इसका रीजन क्या है? Given statements are to reduce the regulatory burdens on these NBFCs, to ensure stricter oversight by other regulators, to encourage competition among the regulatory authorities, or to streamline the registration process for the new NBFCs. So this is in terms of the powers that are given to RBI, and to avoid the dual regulation, certain categories of NBFCs are regulated by other regulators, जो कि other regulators regulate करते हैं। जैसे कि सेबी के अंदर there is कैपिटल वेंचर कैपिटल फंड, देन मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, ये सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो फिर इसको आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होना होता। देन इंश्योरेंस कंपनीज है दैट आर होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट इज इशूड बाय आईआरडीए। निधि कंपनीज दैट आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 620A of the Companies Act। तो इसके अलावा जो चिट फंड्स हैं या फिर चिट कंपनीज हैं, these are under the Chit Funds Act of 1982। then the housing finance companies, ये नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर आते हैं, एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज और अ म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। तो इनको ऑलरेडी दूसरे रेगुलेटर्स जो हैं ये
ओवरसाइट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो इनको आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, उनको एग्जाम्पशन मिलता है. सो दिस इज टू रिड्यूस द रेगुलेटरी बर्डन ऑन दीज एनबीएफसीज. दैट इज सी. ओनली वन इज द राइट आंसर. ये इसीलिए है ताकि एक तो डुअल रेगुलेशन ना हो. डुअल रेगुलेशन होगा तो इनके ऊपर ज्यादा बर्डन होगा. दूसरा, बाकी सारे जो रेगुलेटर्स है वो एफिशिएंटली अपना काम कर सकें. फॉर दिस, these types of NBFCs, these specific categories of NBFCs are exempted from registration with RBI. So the right answer is C, that is only 1. Next. The question says, which type of NBFCs focus on investing in the public-private partnerships and infrastructure funds? So, बहुत सारे NBFCs है. There are various types of NBFCs such as the NBFC infrastructure finance companies, NBFC microfinance institutions, NBFC factor, NBFC infrastructure debt fund, that is the IDF NBFC. So ये बहुत types के हैं. इसके अलावा भी होते हैं deposit taking, non deposit taking and so on. अब इसमें से कौन से NBFCs है जो कि इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में? So the right answer is D, that is infrastructure debt fund or the NBFCs IDF. ये होते हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं. यहाँ पे इनकी जो बेसिक क्वालिटी है, इट इज दैट दे हैव अ नेट ओन फंड ऑफ रुपीज 300 crores or more and they invest exclusively in such projects. वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स में exclusively इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इनको क्रिएट किया जाता है. So the right answer is D, that is NBFC IDF. Next. Then the next question is, which layer of NBFCs consists of the non-deposit taking NBFCs below the asset size of rupees 1000 crores and NBFCs undertaking specific activities? So NBFCs का जो constitution आता है, this is divided into 4. The NBFCs base layer, middle layer, upper layer as well as top layer. इसमें जो top layer होता है, it is mostly kept empty. अब ये पूछा गया कि कौन से NBFCs हैं जिसमें इसमें कौन सी कैटेगरी में नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आते हैं. सो द नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, दिस कम्स अंडर द बेस लेयर एनबीएफसीज. इट कंप्राइजेस ऑफ द नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज बिलो द एसेट साइज ऑफ रुपीज 1000 crores एंड जो एक्टिविटीज, ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं दैट देयर अंडरटेकिंग, इट इंक्लूड्स द एनबीएफसीज पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म P2P. उसके अलावा एनबीएफसीज अकाउंट एग्रीगेटर, account aggregator, that is the NBFCs AA. उसके अलावा जो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग होते हैं, that is the NOFHC, non operator financial handling company, and the NBFCs that are not availing any public funds and not having any customer interface. So public funds and customer interface यहाँ पे नहीं होता है. तो ये सारी एक्टिविटीज होती हैं दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एनबीएफसीज बेस लेयर. इसमें क्या आ रहा है? पीयर टू पीयर आ रहा है, उसके अलावा अकाउंट एग्रीगेटर आ रहा है, देन द नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, और जो भी पब्लिक फंड नहीं एक्वायर कर रहे हैं या फिर वो किसी भी तरह का कस्टमर इंटरफेस नहीं रख रहे हैं, दीज कम अंडर द नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, दैट इज द एनबीएफसी ND. So the right answer is A, base layer. Next question. So before we move on, here's an important information for you. You can download the My Online Prep app from Google Play and avail free mock tests as well as free videos. इस ऐप पे आपको mock test के साथ साथ free videos भी मिलते हैं, all free of cost. ये mock test लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है. जो भी क्वेश्चन है ये जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, आप सारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते हो, तो आप बेसिकली सारे एमसीक्यूज को कवर करके जा रहे हो जो भी एग्जाम्स में आ सकते हैं. तो वी एश्योर यू कि आप ये सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, आप सारे वीडियोस देख लो, आपका रिविजन कंप्लीट हो जाएगा, आप इजीली 60+ स्कोर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में. ये बहुत टफ टास्क नहीं है, ये चैलेंजिंग उतना नहीं है जितना लग सकता है, बिकॉज टाइम कम है, हमको रिविजन भी कंप्लीट करना है. तो मॉक टेस्ट यहाँ पे इसीलिए अवेलेबल करवाए गए हैं. इसके अलावा जो हम एमसीक्यूज यहाँ पे यूट्यूब वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, इसके जैसे ही बहुत सारे एमसीक्यूज है जो आपको हेल्पफुल प्रूव होंगे, that are available in the mock test. So download this app and avail these services so that you can complete your revision efficiently. Now let us move on to the next question. The question says, what is the rate of the provision for individual housing loans and loans to the small and micro enterprises, that is SMEs,
फॉर एनबीएफसी क्लासिफाइड एज एनबीएफसी अपर लेयर। तो एनबीएफसी अपर लेयर में क्या प्रोविजन है जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स और लोन्स टू द एमएससीज? गिवन ऑप्शंस आर 2%, 0.75%, 0.25% और 1%. So actually the NBFCs that are classified as the NBFC upper layer, they shall maintain provisions in respect of the standard asset, the standard assets, और इसका रेट क्या है? The rate at which it is to be maintained, it is 0.25%. that is option C. ये इसलिए ताकि जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोन क्या हो? वो एफिशिएंट हो. So this is the standard assets, the provision that is maintained, it is 0.25%. C is the right answer. Moving on. The next question is, what is the purpose of the internal capital adequacy assessment process, the ICAAP for NBFCs? So internal capital adequacy assessment process ये develop किया गया है. इसका main purpose क्या है? Statements are to determine the regulatory capital requirements for the NBFCs, to assess the need for capital based on the risks of the NBFC business, to calculate the leverage ratio for the NBFCs, or to evaluate the profitability of NBFCs. तो ये है इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस. ये प्रोसेस क्यों किया जाता है? द पर्पस इट इज टू इंश्योर दैट द एनबीएफसीज मेक अ थॉरो इंटरनल असेसमेंट फॉर द नीड ऑफ कैपिटल. इसमें क्या क्या उनको दे हैव टू टेक इनटू अकाउंट द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क्स इन द बिजनेस. ये कैपिटल का असेसमेंट होता है ताकि जो भी रिस्क है उसका एक प्रॉपर तरीके से उसको कंसिडरेशन में लेके इंटरनल असेसमेंट क्रिएट किया जा सके. सो द राइट आंसर इज to assess the need for capital based on the risks in the NBFC business. That is only 2. Regulatory capital requirements जो NBFCs के लिए जरूरी हैं, ये इसका पर्पस नहीं होता, या फिर leverage ratio, even profitability calculate नहीं करता है. जो assessment है on the basis of risk or the factors, ये कौन कौन से risk होने चाहिए? It should relate to the credit risk, then market risk, operational risk, as well as other residual risk. The residual risk, ये सारे बेसिस पे ही ये इंटरनल असेसमेंट प्रोसेस है जिसको कंडक्ट करना चाहिए. इससे होता क्या है? इट एक्चुअली encourages the NBFCs to develop better internal risk management techniques, and it also facilitates a dialogue between the supervisors and the NBFCs. जो भी risk assessment है, mitigation है, उसके लिए NBFCs और उसके जो भी supervisors and regulators है उनके बीच में dialogue conduct करता है ताकि बेटर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स एनबीएफसीज इंप्लीमेंट कर सके. सो द राइट आंसर इज बी, टू असेस द नीड फॉर कैपिटल बेस्ड ऑन द रिस्क इन द एनबीएफसी बिजनेस. नेक्स्ट. The next question is, what is the exposure category for the capital market and commercial real estate for NBFCs? तो ये prudential requirement में चलता है. इसके अंदर पूछा गया है कि एक्सपोजर कैटेगरी कैपिटल मार्केट्स और कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए क्या है. गिवन ऑप्शंस आर सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, स्टैंडर्ड एसेट्स और नॉन सेंसिटिव एक्सपोजर. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे एक्सपोजर की बात हो रही है कैपिटल मार्केट से. इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एज वेल एज द कमर्शियल रियल एस्टेट. ये किसके अंदर आता है? बिकॉज दोनों ही कैपिटल मार्केट और कमर्शियल रियल सेक्टर जो है ये सेंसिटिव एरियाज हैं. दीज आर द सेंसिटिव एरियाज. इसीलिए इसको किस में लाया जाता है? दिस कम्स अंडर द सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर. एनबीएफसीज को यहाँ पे जरूरी क्या है? दे शैल फिक्स अ बोर्ड अप्रूव्ड इंटरनल पॉलिसी, अ बोर्ड अप्रूव्ड इंटरनल पॉलिसी और लिमिट्स फॉर द सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर कि उसको कितना एक्सपोजर रखना है. सेपरेटली दिस हैज टू बी क्रिएटेड फॉर द कैपिटल मार्केट एज वेल एज द कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर. यहाँ पे डायनेमिक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना जरूरी है. ऑल्सो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है बिजनेस पे, इसको इवेल्युएट किया जाता है पीरियोडिकली, and it should help the NBFCs determine such internal exposure limits. The internal exposure limits, these are evaluated and identified through this procedure. So board फ्री होता है डिटरमाइन करने को क्या सब लिमिट्स होनी है ओवरऑल सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर में, फिर भी कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है. दिस इज अ सब लिमिट हैज टू बी विद इन द कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर. जो कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए इट शुड बी फिक्स्ड इंटरनली फॉर द फाइनेंशियल लैंड एक्विजिशन.
जहां पे भी फाइनेंशियल लैंड एक्विजिशन सेक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो सब लिमिट सेट करनी है, इट शुड बी सेट इंटरनली. एंड देन सेकेंड, अ सीलिंग शुड बी पुट, अ सीलिंग ऑन आईपीओ फंडिंग, ये भी होना चाहिए. सो लैंड एक्विजिशन के लिए और आईपीओ फंडिंग के लिए यहाँ पे जो भी सब लिमिट सेट की जा रही है सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर के अंदर, ये प्रॉपर होना चाहिए, सही से करना चाहिए, क्योंकि ये वो सेक्टर्स है जो ज्यादा एक्सपोजर है, इम्पैक्ट कर सकते हैं बिजनेस को. सो है द राइट आंसर इज ए, दैट इज सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर, SSE. नेक्स्ट, the question says, what is the role of the Chief Compliance Officer, that is the CCO in NBFC? NBFC में Chief Compliance Officer का role क्या है? Whether it is to evaluate the overall risks that are faced by the NBFCs, to oversee the corporate governance practices, to ensure compliance with the regulations and establish a compliance culture, or to formulate the compensation guidelines for employees. So Chief Compliance Officer का किसी भी organization के अंदर basic rule क्या होता है कि जो भी regulations या फिर directions दिए गए हैं, the laws that have been put by the internal policies as well as the external directions, उनको properly adhere किया जाए. All these regulations are properly adhered to, these are complied with. So what is the role? To ensure compliance with the regulations and establish a compliance culture. The right answer is B, that is only 3. ओवरऑल रिस्क जो एनबीएफसी फेस करता है, ये इसके अंदर नहीं आता है. वो किसके अंदर आ सकता है? वो ऑडिट कमेटी के अंदर आ सकता है. देन ओवरसी द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ये भी नहीं है. एंड कॉम्पनसेशन गाइडलाइंस, ये मैनेजमेंट के अंदर आ सकते हैं. बट कंप्लायंस कल्चर डेवलप करना, जो रेगुलेशंस हैं उनके साथ कंप्लायंस किया जा रहा है, इसको इंश्योर करना, ये रोल होता है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का. दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द मेंटेनिंग एज वेल एज अधेरेंस टू द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. तो अब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ये सीनियर होना चाहिए ऑन द हायरार्की ऑफ एनबीएफसी. प्रॉपर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरीके से उनको अपॉइंट करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कितनी अथॉरिटी उनको दी जाएगी. ऑल दिस कम्स अंडर द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर फॉर द एनबीएफसी. सो द राइट आंसर इज बी, दैट इज ओनली 3. नेक्स्ट, and the last question for today is, in addition to the acknowledgement of loan applications, what other information should be provided to the borrower as per the Fair Practices Code? तो NBFCs क्योंकि ये loans and advances में involved है, तो फिर जब ये loan application का acknowledgement कर रहे हैं कि उन्होंने accept कर लिया, उसके साथ साथ उन्हें और क्या information provide करनी है? First, loan approval status. Second, interest rate fluctuations. Third, grievance redressal mechanism. और fourth, documentation requirements for loan disbursement. तो यहाँ पे fair practices code के अंदर बहुत ज़्यादा importance किसको दी गई है? It is the grievance redressal mechanism. So it has emphasized the need for the applicable NBFCs to have a well defined grievance redressal mechanism in place. प्लस ये बताना चाहिए है इन द वर्नेकुलर लैंग्वेज, जो भी एप्लीकेंट्स हैं, जो भी बोरोवर हैं, उनको उनकी लैंग्वेज में दैट इज अंडरस्टूड बाय देम, ये उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, किस तरीके से ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म वर्क कर रहा है एनबीएफसी में, किसको अप्रोच कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा फॉर एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट दैट इज फेस्ड बाय देम. सो इसके लिए दिस इंश्योर्स दैट द बोरोवर्स दे हैव मीन्स टू एड्रेस any complaints or concerns. It might relate to the processing of loan, then disbursement of any kind of credit facilities as well as repayment. इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ग्रीवेंस होती है कस्टमर को, तो उसको प्रॉपर रिड्रेसल मिलना चाहिए. दिस हेल्प्स इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी as well as accountability in the borrower NBFC relationship. तो एक well defined ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अगर होगा तो कस्टमर्स को, बोरोवर को ज्यादा ट्रस्ट होगा एनबीएफसीज पे. सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. So that's all for today. We have completed the chapter 6 from module A of this paper. इसमें हमने NBFC से related जो भी important topics है उनको देखा, किस तरीके से NBFCs work करते हैं, उनके registration से related questions से, क्या laws है जो applicable हैं, what are the types of NBFCs. अब यहाँ पे MCQs के साथ में जो हमने topics discuss किए उसको और thoroughly revise करने के लिए आप free videos refer कर सकते हो जो कि app पे available है. Also the mock test, this will help you get a clearer grasp over the examination patterns. So these videos on the YouTube channel are being uploaded on a daily basis. Do not miss any video क्योंकि ये आपके revision के लिए बहुत important है. So do hit the like button and subscribe to the channel.
ये वीडियोस डेली देखेंगे तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इजीली. नाउ वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप लर्निंग विद अस एंड थैंक यू.